یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. کیرلا کے وائناڈ علاقے میں مٹی کے تودے گر آنے کے واقعات میں متاثرہ علاقوں کا وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا فضائی معائنہ. زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی ترقی میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کا کلیدی رول. چیف سیکریٹری اٹل ڈلو. وادی کے مختلف اضلاع میں آج شہریوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کی پہل کے تحت ترنگا ریلیوں اور ترنگا دوڑ کا انعقاد. اور اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے 24,697 کروڑ روپے کے 8 نئے ریلوے پروجیکٹوں کو دی منظوری. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی جو مٹی کے تودے گرنے سے متاثرہ وائناڈ کے دورے پر ہیں چورامالا پہنچ گئے ہیں، جو پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو بڑے پیمانے پر چٹانوں کے کھسکنے سے بری طرح سے متاثر ہوا تھا. فوج نے چورامالا میں آیوونا پوزا دریا پر 190 فٹ بیلی برج تعمیر کیا تھا، جس کی وجہ سے مٹی کے تودے کھسکنے والے علاقوں کو بھاری آلات اور فوجی اہلکاروں کے تیزی سے نقل و حمل میں سہولت حاصل ہوئی. وزیر اعظم نے فوجی اہلکاروں کے علاوہ راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں شامل افراد سے بھی بات چیت کی. وزیر اعظم نے چورامالا سے MIMS اسپتال اور میپیڈی میں سینٹ جوزف اسکول میں واقع ایک امدادی کیمپ میں راحت کاری اقدامات کا جائزہ لیا. انہوں نے کیمپ میں متاثرہ افراد سے بات چیت کی. اس سے پہلے وزیر اعظم نے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا تھا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون جموں میں شہید وجے کمار کی بیوہ رینو شرما کو تقرری کا خط سونپ دیا ہے. وجے کمار ریاسی میں ایک دہشت گرد حملے میں مارے گئے تھے. ریاسی سے تعلق رکھنے والا وجے کمار یاتریوں کو لے جانے والی وہ بس چلا رہا تھا جس پر 9 جون کو ملیٹنٹوں نے حملہ کیا تھا. لیفٹیننٹ گورنر نے ان کے اہل خانہ کو UT انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن مدد اور تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر ریاسی کے ڈپٹی کمشنر وشیش پال مہاجن اور وجے کمار کے اہل خانہ بھی موجود تھے. چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج کہا ہے کہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام HADP زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں ترقی کے نئے دور کی شروعات ہے، جس سے کسانوں کی زندگی میں بہت بہتری آنے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی دوگنی ہوئی ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے اسکاسٹ کشمیر میں HADP کے مستحقین کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا. چیف سیکریٹری نے کہا کہ یہاں کے کسان اس بات پر مطمئن ہیں کہ HADP نے ان کی آمدنی میں نمایاں اضافہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے اور اسی تناظر میں حکومت نے ایک عملی اور ہم آہنگی سے متعلق پالیسی پروگرام HADP متعارف کرایا. چیف سیکریٹری نے کہا کہ HADP کا مقصد پیداواری صلاحیت، ترقی اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا ہے، جس سے جموں کشمیر کی مجموعی گھریلو پیداوار میں اضافہ ہوگا. چیف سیکریٹری نے کہا کہ جو نوجوان زراعت کے شعبے سے دور ہو رہے تھے اب وہ HADP کی مدد سے زراعت پر اپنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں. سری نگر میں آج چیف سیکریٹری اٹل ڈلو کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی تاکہ جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے بعد سری نگر اور جموں میں قانون ساز اسمبلی کمپلیکسوں کے اندر اجلاسوں کے انعقاد کے لیے ایک خاکہ تیار کیا جا سکے. اس موقع پر چیف سیکریٹری نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ سری نگر اور جموں دونوں جگہوں پر اسمبلی کمپلیکسوں کی تجدید و مرمت اور ان کی زیبائش کے لیے مقررہ میعاد میں اقدامات کریں. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کمپلیکسوں میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ معقول ساؤنڈ سسٹم، فائر سیفٹی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں گے. چیف سیکریٹری نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے انتخابات سے قبل تیاریوں کے لیے پیشگی اقدامات شروع کیے جانے چاہیے تاکہ جموں کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کے بعد جمہوریت کے اس ستون کے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. میٹنگ میں انتظامیہ کے اعلی افسران نے بھی شرکت کی. فوج، جموں کشمیر پولیس اور CRPF کی مشترکہ ٹیم نے آج کوکرناگ علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے میں کارروائی شروع کی. فوج کی طرف سے جاری ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ تصادم آرائی کے دوران حفاظتی عملے کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. آخری خبریں آنے تک آپریشن جاری تھا.
कठुआ पुलिस ने आज उन 4 मिलिटेंटों के खाके जारी किए हैं जो जिले के कई हिस्सों में देखे गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार के मुताबिक पुलिस ने इनमें से किसी भी मिलिटेंट से मुत्तल्लिक जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है। इन मिलिटेंटों को आखिरी बार कठुआ जिले के बालाई इलाकों में देखा गया था। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता महीने की 8 तारीख को कठुआ के बडनोटा इलाके में दहशतगर्दाना हमले में फौज के 4 जवान हलाक और 6 दीगर जख्मी हुए थे। बारामूला पुलिस ने आज कत्ल के एक केस में 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस के मुताबिक 2 अगस्त को उन्हें खंबियार अंदरगाम पुल के नीचे एक नामालूम लाश मिली, जिसकी शिनाख्त बाद में पोस्टनाग क्रीरी के नासिर अहमद गनाई के बतौर की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान की शिनाख्त की, जिन्हें हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के दौरान ये पाया गया कि मुलजिमान ने अगस्त की 1 तारीख को नासिर अहमद गनाई को कत्ल करने के बाद उसकी लाश पुल के नीचे फेंक दी। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की एक अहम तकरीब में जिला इंतजामिया शोपियां की तरफ से एक अजीमुशान तिरंगा दौड़ का इनेकाद किया गया। ये दौड़ बटपुरा के स्टेडियम से शुरू होकर जिला पुलिस लाइन्स में इख्ताम पजीर हुई। रैली में तलबा की खासी तादाद के साथ साथ सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों ओहदेदारों ने शिरकत की। इनकी फाल शिरकत ने नौजवानों में कौमी फख्र के एहसास को फरोग देने में इसकी अहमियत को मजीद उजागर किया। उधर पुलवामा में भी आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़यूम ने की। एसएसपी पुलवामा के साथ साथ जिला अफसरान की एक खासी तादाद भी रैली में मौजूद थी। तिरंगे के हमरा स्कूली बच्चों की खासी तादाद के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद ने तिरंगा रैली में हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया। ये रैली बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा से शुरू होकर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इख्ताम पजीर हुई। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में एक किताब की रस्मी रुनमाई अंजाम दी। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स नामी इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा और विनोद कुमार श्रीवास्तव हैं। एलजी ने इस कोशिश के लिए उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज बब्बर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन जंगल के बादशाह के तहफ्फुज के बारे में बेदारी में इजाफा करने पर तवज्जो दी जा रही है। इस दिन का मकसद बब्बर शेरों की कम होती हुई तादाद और उन्हें मुख्तलिफ खतरों से बचाने की फौरी जरूरत पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना है। भारत में बब्बर शेरों के तहफ्फुज को सकाफती और माहौलियाती अहमियत हासिल है और यहाँ एशियाई नस्ल के बब्बर शेर पाए जाते हैं। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्क में बब्बर शेरों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। 1990 में मुल्क में 284 बब्बर शेर पाए गए थे, जबकि 2020 में ये तादाद बढ़कर 674 तक पहुंच गई है। इक्तिसादी अमूर की काबीना कमेटी ने रेलवे की वजारत के 8 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 24,657 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट 7 रियासतों उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के 14 जिलों में तामीर किए जाएंगे। साल 2024-25 की पहली सहमाई में गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में भारत की दिफाई बरामदात में 78% का इजाफा हुआ है। वजारत दिफा के मुताबिक 2024-25 की सहमाई के दौरान 6,915 करोड़ रुपए मालियत का दिफाई साजो सामान बरामद किया गया, जबकि साबिका साल इसी मुद्दत के दौरान दिफाई साजो सामान के मालियत 3,865 करोड़ रुपए रही थी। महकमा दिफा के तर्जुमान ने मीडिया पोस्ट पर इंकशाफ किया कि सरकार ने दिफाई शोबे में खुद कफालत और जदीदकारी का एक नया रिकॉर्ड कायम करने का तहिया कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल 11 अगस्त को मुनक्किद होने वाला नीट पीजी इम्तिहान मुअख्खर करने के मुत्तलिक अर्जी को मुस्तरद किया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी
पर्डी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों के इम्तिहानी मराकज गैर मुनासिब शहरों में रखे गए हैं। वाज़ेह रहे कि ये इम्तिहान 23 जून को होने वाला था, जिसे मुबैना तौर पर इम्तिहानी निज़ाम में बेज़ाब्तगियों के बाद मुलतवी कर दिया गया था। कल होने वाले इस इम्तिहान के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 500 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय चुनाव कमीशन के हालिया जम्मू कश्मीर के दौरे को एक खुशआइंद कदम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली चुनाव कराने से मुत्तल्लिक दी गई यकीन दहानी का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये चुनाव साफ शफाफ और मुनसिफाना तौर पर मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमहूरी और आईनी हुक्मरानी के साथ साथ अवामी नुमाइंदा सरकार की हमेशा से ही वकालत करती आई है। सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना की एक इत्तला के मुताबिक सीनियर रेजिडेंट डेंटिस्ट्री की आसामियों के लिए तहरीरी इम्तिहान 17 अगस्त दिन के 3 बजे सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में लिया जाएगा। उम्मीदवार 12 अगस्त से इदारे की वेबसाइट www.skimsmc.edu.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में माली साल 2024 के दौरान कोल की सबसे ज्यादा पैदावार दर्ज की गई है। कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हाल ही में लोकसभा को जानकारी दी कि इस बरस के दौरान ये पैदावार 997.828 मिलियन टन रही और उन्होंने कोल की किल्लत के खदशे को दूर किया। उन्होंने कहा कि कोल की ये पैदावार पिछले बरस के मुकाबले में 11.71% ज्यादा है। हुकूमत कोल की पैदावार बढ़ाकर इसकी दरामद को कम से कम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। रवा माली साल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले सहमाही में मुल्क में कोल की पैदावार 247.396 मीट्रिक टन रही, जो पिछले बरस इसी मुद्दत के दौरान रही पैदावार का लगभग 11% ज्यादा है। कोल माइनिंग में बेहतरी लाने के लिए कोल सेक्टर के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल कायम किया गया है, जिसकी बदौलत कोल की सालाना पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। केरला के वायनाड इलाके में मिट्टी के तूदे गिर आने के वाकयात में मुतासरा इलाकों का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया फजाई मुआयना। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की तरक्की में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कलीदी रोल, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू। वादी के मुख्तलिफ अजला में आज शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की पहल के तहत तिरंगा रैलियों और तिरंगा दौड़ का इनेकाद। और इक्तिसादी अमूर की काबीना कमेटी ने 24,697 करोड़ रुपए के 8 नए रेलवे प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।